ہے وہ حواس، ہم نے علم کے اسباب میں سے 3 پڑھے تھے نا، ایک جو ہے عقل، دوسرا جو ہے خبر صادق، دوسرا جو ہے حواس. تو ان میں سے اچھا جی بولے آپ آخر میں. جی یہ نئی طالبہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں. میرے پاس اصل میں کتابیں نہیں ہیں ابھی تک، تو اگر ایسا ممکن ہے کہ مجھے کتابیں مل سکتی ہے تو میں فالو کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، میں بھیج دوں گی. آپ کا نمبر تو میرے پاس نہیں ہے تو میں لیکن آپ کو لکھ سکتی ہوں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں انشاءاللہ میں باقی کیچ اپ کر لوں گی جب اچھا کتاب ایسا میرے کر لیں پاس. کہ اپنا نمبر جو ہے یہاں پر لکھ کر بھیج دیں، پھر میں کلاس کے بعد آپ کو PDF بھیج دوں گی دونوں سے. جو میں 2 کتابیں پڑھاتی ہوں، بعد میں انشاءاللہ سمجھا لوں گی کیونکہ ابھی ریکارڈنگ جو ہے وہ جاری ہے. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس نمبر پر پھر بعد میں بھیج دوں گی کیونکہ ابھی کلاس لیپ ٹاپ پر لیتی ہوں نا، کرنا پڑے گا پھر. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الطہارت میں ہم جو ہے کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ آپ لوگ PDF میں 63 نمبر 63 نمبر پیج ہے وہ نکال لے. اچھا ہم یہ پڑھ رہے تھے، کل کے مسئلے میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر سبیلین مطلب کہ پیشاب اور پخانے کے علاوہ، ان 2 راستوں کے علاوہ دوسرے جہاں پر بھی بدن سے کوئی بھی نجاست خارج ہو جائے تو اس سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. تو اسی پر جو ہے انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے تھے. اس میں سے جو ہے کہ منہ بر کر کے کا مسئلہ آیا تھا. تو اب قے کے مسئلے میں جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قے جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے. ان کا دلیل یہ ہے کہ انہ قاء فلم یتوضا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قے کیا لیکن فلم یتوضا، لیکن وضو نہیں کیا. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قے جو ہے ناقض وضو نہیں ہے. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہمارے احناف میں سے ایک فقیہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قے جو ہے مطلقاً ناقض وضو ہے، یعنی چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو، مطلقاً جو ہے وہ کیا ہے ناقض وضو ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القلص حدث. قلص کہتے ہیں قے کو کہا جاتا ہے وامٹین کو، کہ القلص حدثنا، کہ قے جو ہے وہ ناقض وضو ہے. اب دیکھو وجہ استدلال کسی طرح ہے کہ اس میں قے مطلقاً ناقض وضو ہے، اس میں منہ بر کر ذکر نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ قے جو ہے مطلقاً ناقض وضو ہے. ہماری دلیل جو ہے، ہماری دلیل پہلا دلیل جو ہے ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چیزوں کو جو ہے ناقض وضو قرار دیا. ان میں سے جو ہے پہلا چیز جو ہے پیشاب ٹپکنے سے، یعنی پیشاب کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا بہنے والا خون. تیسرا پیپ سے، اور پیپ جو کہ گند ہوتا ہے، جو کسی کے جسم پر پھوڑا وغیرہ نکل آئے، زخم وغیرہ، تو اس سے جو ہے گند وغیرہ جاری ہوتا ہے پیپ. اور تیسرا جو ہے الفاظ یہ ہے من دسعۃ تملأ الفم. دسع کہتے ہیں قے کو، یعنی وہ کہ جو منہ بر کر ہو، وہ کہ جو منہ بر کر ہو. تو دیکھو اور پھر جو ہے اور کروٹ پر لیٹنے کی وجہ سے، یعنی کروٹ پر لیٹی ہوئی نیند کے ساتھ ہو، اور مرد کی نماز میں قہقہ اور خون کے نکلنے، یہ جو ہے ناقض وضو ہے. تقریباً 7 ناقض وضو ہے. ہمارا جو ہے استدلال کسی طرح ہے قے سے جو منہ بر کرو. تو اس حدیث میں قول حدیث ہے، اس میں صراحتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحتاً بیان فرمایا کہ قے جو ہے یہ تب ناقض ہوا جب منہ بر کرو. کیا ہے کہ تب ناقض وضو ہے جب منہ بر کرو. یہ تو ایک ہم نے قول صاحب ہدایت کا یہ جو ہے ترتیب ہے کہ وہ عقلی اور نقلی دونوں دلائل پیش کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک تو نقلی دلیل پیش کی، اور عقلی دلیل کسی طرح کہ اصل میں یہ منہ کی 2 حیثیت ہے. منہ کی 2 حیثیت ہے. یہ جو ہے کیا ہے، یہ باطن کے ساتھ بھی ریلیشن رکھتا ہے اور ظاہر سی بھی.
تو जब जो है यानी जब मुंह खोले तो ये जाहिर के मुशाबे, हम कहते हैं कि ये जाहिर की तरह है, जिस तरह कान नाक की जाहिर वाली चीज है ना, अंदरूनी जो है पार्ट्स ऑफ बॉडी नहीं है बल्कि ये तो बाहर वाले पार्ट्स है। तो इसी तरह जो है जब वो क्या होता है, ये मुंह की जो है दो हैसियत है, ये अंदर के पार्ट्स का भी हैसियत किरदार अदा करता है, बाहर का भी। अब जो है अगर हम अंदर का हिस्सा शुमार करें तो फिर तो जो है जो है ये तो अंदर वाली चीजों के साथ जो है वो तो क्या होता है, इबादत इस पर यानी उस पर अहकाम लागू नहीं होते। तो फिर होना तो ये चाहिए कि जो है मुंह से जो चीज निकले उससे जो है वो वजू नहीं टूटना चाहिए। अगर हम उसको जाहिर के आज़ा में से शुमार करें तो फिर जो है वो क्या हो, इसके साथ अगर वो उससे कुछ चीज निकले तो फिर वो जो है वो नाक़िज़ वजू होना चाहिए। तो इसी वजह से हमने इन दोनों किरदारों को, इन दोनों हसीयतों का एतबार किया है। तो इसी वजह से हम कह क्यों, क्योंकि अगर मुंह जो है खोल लिया जाए तो फिर ये जाहिर का मुशाबे होता है, अगर ये मुंह जो है ये बंद हो तो फिर जो है वो बातिन का हिस्सा शुमार होता है। तो इसी वजह से हमने जो है मुंह भर कर के का एतबार किया है कि जब मुंह भर जाता है तो फिर जो है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो जाहिर सी बात है ना, मुंह खुल जाती है। तो इसी वजह से हमने मुंह भर कर एतबार किया कि अगर मुंह के जो है वो मुंह भर कर हो तो ये नाक़िज़ वुज़ू है, अगर मुंह जो है के भर कर ना हो तो फिर ये नाक़िज़ वुज़ू नहीं है। अब देखो इबारत की तरफ देख लियो, फिर आगे जो है हम चलते हैं, इस पर एक और भी मसला है। हाँ, वमिल्कुल फम अन यकून बिहाल ला युमकिनु ज़ब्तुहु इल्ला बितकल्लुफ़। और मुंह भर करके किसी कहते हैं, मुंह भर कर कहते हैं कि उसको इसको कंट्रोल करना, उसको जब्त करना मुमकिन ना हो इल्ला बितकल्लुफ़, मगर तकल्लुफ के साथ हो। तो वही वाली कहते हैं तकल्लुफ के साथ जो है वो क्या है हो, मुमकिन ना हो। तो इसी वजह से लिअन्नहु यखरुजु ज़ाहिरन फ़अतबरा खारिजन, क्योंकि अगर जो है हम उसको जाहिर का एतबार कर लें। अब यहाँ पर जो है हसीयत जो है वो बयान करते हैं कि हो अगर इसको जाहिर का एतबार करें तो फिर जो है ये क्या होगा, लिअन्नहु यखरुजु ज़ाहिरन फ़अतबरा खारिजन, क्योंकि वो जाहिर करके निकलेगा, फ़अतबरा खारिजन, बस इसको खारिज ही समझा जाएगा। यानी तो इसी वजह से हमने मुंह भरकर इतबार किया, जब वो मुंह भरकर कंट्रोल करना मुश्किल, तो जाहिर सी बात है ना ये वॉमिट हम बाहर आएंगे। तो इसी वजह से हमने खारिज के इतबार करते हुए मुंह भरकर क्या कर दिया कि अगर मुंह भर से कम हो तो फिर वह नाक़िज़ वुज़ू नहीं है, नहीं वजू इससे नहीं टूटा। अगर मुंह भर से ज्यादा हो, कम हो तो फिर जो है ना मुंह भरकर हो या इससे ज्यादा हो तो फिर जो है वो क्या होगा, नाक़िज़ वुज़ू होगा। वक़ाल ज़ुफ़र, इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह फरमाते क़लीलुल क़ैइ व कसीरुहु सवाउन, कि थोड़े के कलील और कसीर दोनों जो है वो क्या है, वो बराबर है। वकज़ा ला यश्तरितु सैलान इअतिबारन बिलमखरिजिल मोताद, और इस तरह वो मखरज मोताद पर कयास करते हुए सीलान की शर्त भी नहीं लगाते। क्या मतलब वो जो है हम खून को, ये कल हमने ये मसला पढ़ा था, हमने हमने जो है वो क्या किया था, वकज़ा ला यश्तरितु सयलान एतिबारन बिलमखरिजिल मोताद, और वो जो है कहते हैं कि हम कहते हैं कि खून जब यानी कि बदन सबीलैन के अलावा से गैर सबीलैन पर जब खून का इखराज हो जाए तो जब तक वो बहे नहीं तब तक जो है वो नहीं होगा। वो कहते हैं नहीं, बल्कि मुतलकन खून का अपने जहाँ पर खारिज होने ही जो है वो नाक़िज़ वुज़ू है, चाहे वो बहे या नहीं बहे। वही कहते हैं वकज़ा, और इस तरह ला यश्तरी, तो वो शर्त नहीं लगाते अस्सयलानो, किस अस्सयलाना किस चीज़ के बहने का, एतबारन बिल मखरिजिल मोताद, मखरिज मोताद पर। क्या मतलब सबीलैन पर कियास करते हो, वो कहते हैं कि जिस तरह क्या होता है मखरज मोहतात, मतलब वो सबीलैन पर जो है वो खुरूज होना, यानी निजात का खुरूज होना ही नाक़िज़ वुज़ू है। तो इस तरह जो है गैर सबीलैन पर बदन के दूसरे हिस्सों पर सिर्फ खुरूज ही मोतबर होगा, सिनान जो है वो शर्त नहीं है। वली इतलाक़ ना, और उनके के मुतालिक वली इतलाक़ क़ौलिही अलैहि सलाम अलक़ल्स हदसन, और वो जो है वो फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल मुतलक है, अलक़ल्स हदसन के जो है वो नाक़िज़ वुज़ू है। वलना क़ौलुहु अलैहि सलाम, और हमारा दलील ये है लैसा फ़िल क़त्रति वल क़त्रतानि मिन अद-दम, ये हमें क्या है दम साइल के बारे में, किस चीज़ के दम यानी बहने वाला खून हो। हम कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि, ये कल मैंने बता दिया था ये दलील हो, लैसा फ़िल क़त्रति वल क़त्रतैनि मिन अद-दम वुज़ूउन,
کہ ہو یعنی خون کی ایک قطرے یا دو قطرے میں جو ہے وضو نہیں ہے، الا ان یکون سائلا، مگر یہ کہ وہ بہنے والا ہو. وقولہ علی علی، اور اسی طرح جو ہے وہ کس چیز کا کی ناقض وضو ہونے پر یہ دلیل ہے. وقول علی علی حين عد الاحداث جملتنا، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول جب انہوں نے جو ہے وہ احداث یعنی نجسات کو شمار کیا تھا جملتاً تمام کو، او دسعة تملأ الفم، کیا ہے وہ یعنی وہ جو ہے او دسعة تملأ الفم، یہ جو ہے حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ وہ کہ جو ہے ناقض وضو ہے تملا الفا میں، جو کہ منہ کو بھر کر منہ کو بھر دے، منہ کو بھر دے. وہ اذا تعارض، اب دیکھو کتنے زیادہ اختلاف ہو گیا. وہاں سے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث سے ثابت ہوتا ہے القلس حدث کے مطلقاً کہ جو ہے وہ ناقض وضو ہے، اور ہماری اس 10 تملا الفا سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ناقض وضو کہ جو ہے وہ منہ بھر کر جب ہو تب ناقض وضو ہے. اور آپ لوگوں نے یہ قاعدہ پڑھا ہے اذا تعارض تساقط، جب دو روایتیں آپس میں تعارض ہو جائے تو یہ دونوں ساقط ہوتے ہیں، تو ہم کسی اور دلیل کی طرف وہ جائیں گے. تو اسی وجہ سے جو ہے اور یا جو ہے تطبیقات کریں گے یا تطبیق کریں گے. تو پھر جو ہے ہم نے تطبیق کیا کسی طرح کہ ہو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کو جو ہے قلیل القی پر القلیل پر ہم نے کیا کریں محمول کیا، یعنی یہ القلس حدث والی حدیث جو ہے وہ تھوڑے سے قے پر جو ہے وہ کیا ہے وہ ہم اس کو محمول کرتے ہیں کہ جب کہ توڑے سے ہو تو پھر جو ہے یہ ناقض وضو ہے، ورنہ ناقض وضو ہوگا. اور جہاں تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل کیا فرمایا تھا، انه قاف لم يتوضا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیقی نہیں، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل جو ہے انہوں نے مطلقاً حدث کرا دینا تو ہم اس کو منہ بھر کر کے پر محمول کرتے ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث انه قاف لم يتوضا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن وضو نہیں تھا، اس کو ہم جو ہے کم کے قلیل پر محمول کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی کی تھی، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو نہیں فرمایا. وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْأَخْبَارُ، جب روایتوں میں تعارض ہو جائے، یحمل ما رواہ الشافعی، جو ہم محمول کریں، یحمل محمول کیا جائے گا ما وہ روایت رواہ الشافعی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا علی القلیل، کس چیز پر قلیل پر، وما رواہ الظفر، اور جو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا مطلقاً جو ہے ناقض وضو کو قرار دیا ہے علی الکثیر، ہم اس کو کیا کریں گے کثیر پر محمول کریں گے. والفرق بین المسلکین ما قدمناہ، اور دونوں مسلکوں کے درمیان فرق وہ ہے جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. مطلب کیوں، یعنی منہ بھر کر کا اعتبار کیوں ہے، اسی طرح جو ہے دم سائل بہنے والے خون کا اعتبار کیوں ہے، یہ ہم نے کل جو ہے کل پچھلے سبق میں جو ہے ہم نے یہ بات پڑھی تھی، ہم نے عقلی دلیل جو ہے وہ پڑھی تھی. اب یہاں پر جو ہے مزید امام صاحب ہدایت ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک متوضی یعنی جس کا وضو ہوتا ہے وہ کئی بار کر لیتا ہے لیکن ہر بار جو ہے منہ بھر سے کم نہیں ہوتا. تو آیا یہ ہر بار جو ہے ہم اس کو جمع کر کے، یعنی جب اس کو جمع کیا جائے تو پھر یہ منہ بھر کر سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے برابر ہو جاتا ہے. تو اب آیا اس میں بھی ہم اعتبار کریں گے یا نہیں کریں گے، تو اس میں ہمارے خود احناف کے درمیان اختلاف ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجلس کا اعتبار ہوگا. کیا کہ اگر ایک ہی مجلس سے اس نے بار بار کی اور ان سب کو اکٹھا کر کے منہ بر کے برابر ہو سکتا ہے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ ناقض وضو شمار ہوگا. لیکن اگر یہ کہ یہاں پر جو ہے قدوری کی کلاس کیا ہدایت کی کلاس میں جو ہے ابھی کسی نے جو ہے ٹھیک ہی پھر جو ہے اس کا بدل گیا، پھر اصول کیا ہے دوسری کتاب نے سراجی میں اس نے کی یا جو ہے یہ مجلس تبدیل ہو گیا نا، یہ کیا ہو گیا مجلس یا ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اس نے کی پھر دوسرے کمرے میں چلے گی پھر دوبارہ کی تو یہ بھی مجلس کا تبدیل ہو گیا. یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹنا یا ایک کام سے دوسری کام میں مشغول ہونا، یہ جو ہے مجلس کی تبدیلی کا نشانہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مجلس میں جو ہے بار بار کیا جائے تو ان کو اکٹھے کیا جائے گا. تو اگر وہ منہ بھر کر ہو تو ناقض وضو ہے، اگر منہ بھر کر نہ ہو تو پھر ناقض وضو نہیں ہے. جبکہ جو ہے اگر ایک مجلس میں
थोड़ी सी की, फिर दूसरे में फिर दूसरा मजलिस कायम होगा, फिर दूसरे में थोड़ी सी की, तो इन दो मजलिसों की को जमा नहीं किया जाएगा क्योंकि मजलिस जो है मुख्तलिफ है। गोया कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने मुत्तहिद मजलिस का एतबार किया कि मजलिस मुत्तहिद हो तो फिर जो है एतबार होगा, मजलिस मुत्तहिद ना हो तो फिर एतबार नहीं होगा। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने जो है सबब का एतबार किया है कि ये हम देखेंगे कि ये बार बार की जो आ रहे हैं उसका सबब एक है या सबब एक नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी का दिल खराब हो रहा था, एक मर्तबा जो है उसने की, फिर दोबारा वही वही सबब उसका दिल खराब हो रहा है, एक की आ, फिर जो है दोबारा जो है वही सबब हो रहा था उसने की, तो अब हम इसको क्या करेंगे, जमा करेंगे। अगर मुंह बरकर हो तो नाकिज़ वुज़ू, अगर मुंह बरकर ना हो तो फिर नाकिज़ वुज़ू नहीं है। जबकि हाँ, अगर उसका सबब बार बार मुख्तलिफ होता है, एक जो है निजासत, कभी कभार बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो तबीयत वो कराहत वाली होती है, घिन वाली तबीयत होती है, वो निजासत को देख लेते हैं, उसको क्या आ जाती है, उसने देख लिया क्या आ जाए, फिर उसका दिल खराब होता था, उसने की, फिर और ज्यादा खाने पीने की वजह से उसने उसका जो है की, यानी बार बार उसका सबब मुख्तलिफ हो रहा था, तो इस वजह से वो कहता है कि उनको जमा नहीं किया जाएगा। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की दलील यह है कि मजलिस एक ऐसा वाहिद है, वो तो कहते हैं ना मजलिस का एतबार होता है, वो इसी वजह से कि मजलिस को हर चीज को मुतफर्रिक चीजों को इकट्ठा करने के लिए मजलिस ही वाहिद हल होता है। जिस तरह जो है सजदा 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 तिलावत हो, जब ये एक ही मजलिस में बार बार किया जाए तो एक ही सजदा वाजिब होता है, तो एक ही सजदा वाजिब होता है, तो इस वजह से वो कहते हैं कि मुतफर्रिकात को जमा करने के लिए मजलिस का बहुत बड़ा दखल होता है, तो इसी वजह से कि करने में भी क्या हो जाएगा, इसका भी दखल हो जाएगा। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, हुक्म को साबित करने के लिए सबब की जरूरत होती है, हुक्म को साबित करने के लिए सबब की जरूरत होती है, तो इसी वजह से सबब का एतबार होगा। बहरहाल साहिब हिदायत के नजदीक मुफ्ताबिही को जो है वो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का है। अब यहाँ पर एक और मसला कि आया जब ये कि आप कर ले, वो आपके कपड़े पर लग जाए तो ये कपड़ा निजासत है या ये नजस होगी या नहीं होगी, इस कपड़े से ये धोना वाजिब होगा या वाजिब नहीं होगा। तो इसके बारे में ये कायदा याद रखो कि हो अगर वो मुंह बरकर यानी हर वो के जो कि वजू को तोड़ देती है, तो वो के जो है आपके कपड़े को भी नजस कर लेते हैं। मतलब क्या, मुंह बरकर अगर वो कपड़े जो है ना, अगर आप अपने मुंह भर कर की और वो सारे के सारे जो है वो यानी मुंह भर कर की वो कपड़े पर लगे, तो फिर जो है आपका कपड़े भी नजस होगा, वजू भी टूट गया। अगर वो मुंह भर कर नहीं है बल्कि थोड़े मुंह भर से कम है, तो फिर जो है आपका कपड़ा नजस नहीं होगा। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कलील हो या कसीर हो, सब जो है वो क्या हो नजस मुतलकन जो है कपड़ा नजस हो जाए। लेकिन मैंने बता दिया कि मुफ्ताबी ही कौल जो है वो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का है। हमारे माशरे में एक जदीद मसला बताती हूँ कि बच्चों का जो है वो क्या होता है, दूध का जो है खे होता है वो नाकिज़ वज़ू नहीं, ये सारे जो है ये वो है वैसे अखलातुल अवाम में से है बल्कि मुतलकन जो है वो जिसका भी एक मर्तबा जो है वो मायदे में चला गया, दोबारा जब आ जाए तो उसको तो इसी को खे कहा जाता है ना। तो इसी वजह से बच्चों या बड़ों सब का जो है बराबर हुक्म है, अगर वो मुंह भर कर हो तो नाकिज़ वज़ू, अगर मुंह भर कर ना हो तो नाकिज़ वज़ू नहीं है। अब देखो, वलो क़ा मुतफर्रिकन, और अगर मुतवज़्ज़ी ने कई बार की बिहैसी इस तौर पर लौ जुमिआ, अगर इन तमाम की को जमा किया जाए, यमलउल फमा, तो फिर मुंह को भर देता है। फ़इंद अबी यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, तो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक युअतबर इत्तिहादुल मजलिस कि मजलिस के मुत्तहिद होने का एतबार किया जाएगा। वइंद मुहम्मद, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं युअतबर इत्तिहादुस सबब, किस चीज का एतबार होगा, सबब के मुत्तहिद होने का एतबार होगा। वह हुवल ग़सयान, और वो है सबब मतली, जी मत लाना कि जिसको कहा जाए दिल का खराब होना। सुम्मा सुम्मा फिर एक और मसला बताते हैं इमाम साहिब हिदाया, मा ला यकूनु हदसन ला यकूनु नजसन। मैंने बता दिया जो चीज हदस ना हो, यानी जो कि जो है ला यकूनु हदसन, जो हदस ना हो, ला यकूनु नजसन, वो चीज नजस भी नहीं होगी। यानी जो कि जो है आपको आपकी वजू के नहीं तोड़ता, वो चीज आपके कपड़े पर लग कर वो आपको नजस भी नहीं करता है। युरवा ज़ालिका अन अबी यूसुफ, यही जो है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, वह हुआ सहीह, और यही सही हो है, लिअन्नहु लैसा बिनजसिन, क्यों, क्योंकि वो हुक्मन नजस नहीं होता है ना।
के करना जो है ये नजस तो नहीं होता ना, बहैस लम यंतक़िज़ बिहा तहारा, इसलिए कि उससे तहारत नहीं टूटी, यानी जब तक जो है वो हुक्मन नजस शुमार ही नहीं होगा जब तक वो तहारत को नहीं तोड़ते। हाँ, जब तहारत को तोड़ लेता है, वजू को तोड़ लेता है, तो फिर इस सूरत में वो नजस भी हुक्मन शुमार होगी। आगे आगे जो है इमाम साहिब हिदाया रहिमहुमुल्लाह ताला, उन्होंने जो है क़े की 5 अक़साम जो है वो जिक्र की है। मैं बता लेती हूँ मुख्तसर, फिर आगे चलते हैं। के जो है यानी मुंह भर कर के से जो वजू टूटता है, ये उस वक्त जब ये पत के हो, मतलब जो दिल खराब होते हैं उसकी वजह से जो पानी आता है, जो अजीब से पानी आते हैं के, तो ये उसका के होता है, तो जो है वो क्या होता है, ये भी नाक़िज़ वजू है। इसी तरह खाने की के हो, ये भी नाक़िज़ वजू है। पानी की के हो, ये भी, ये तीनों किस्म की तो बा इत्तिफाक उलमा जो है वो नाक़िज़ वजू है। चाहे किस चीज के पत की के हो, यानी जो इंसान का दिल खराब होते हैं उसके जो है वो बार बार जो है वो अजीब किस्म के पानी आते हैं, तुरशा पानी आते हैं, वो भी नाक़िज़ वज़ू है बशर्ते कि मुंह भरकर हो। इस तरह खाने की किया किसी ने, वो भी नाक़िज़ वज़ू है बशर्ते मुंह भरकर हो। इस तरह पानी की खालिस पानी जो है वो मायदे से जो है वापस कर लिया, जो है ये भी नाक़िज़ वज़ू है बशर्ते कि मुंह भरकर हो। ये तो 3 के जो है ये तो बाइत्तिफाक उलमा नाक़िज़ वज़ू है। आगे जो है बलगम की के और इस तरह खून की के, ये जो है इसमें ये मुख्तलिफ ही मसाइल है। बलगम की के हम देखेंगे अगर ये दिमाग से आता हो, दिमाग से, तो ये तो ये भी बाइत्तिफाक उलमा जो है ये नाक़िज़ वज़ू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दिमाग जो है ये जो है वो नजस का महल नहीं है, नजासत का महल ही नहीं है। तो जब महल ही नहीं है तो उससे आने वाला चीज भी क्या होता है, नाक़िज़ वज़ू से नहीं होता। और ये जो रींट वगैरह होती है ना, ये जो है वो दिमाग से जो है ये बलगम की के शुमार होती है। बहरहाल फ़िक़्ह के इस्तिलाह में अगर कोई जो है वो मायदे से बलगम का के कर ले, मायदे से आए, वो बलगम मायदे से आए, मुंह से आए, तो फिर इस सूरत में जो है वो नाक़िज़ वज़ू है, यानी इसमें इख्तिलाफ है। तरफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो नाक़िज़ वज़ू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बलगम जो है वो चिकनी सा होता है, ये लस्सेदार होता है, वो अपने साथ निजासत को लगने नहीं देता है। अगरचे मायदा जो है वो क्या है, निजासत का महल है, लेकिन बलगम का ये क्या होता है, इसका जसामत यूं बनी होती है कि ये अपने साथ निजासत को टच करने देता ही नहीं है। क्या होता है वो क्या होता है, लचक सा इसमें लस्सेदार होता है, तो वो अपने साथ जो है निजासत को लगने देता ही नहीं है। तो इसी वजह से जो है वो कहते हैं कि नाक़िज़ वज़ू नहीं है। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये नाक़िज़ वज़ू है बशर्ते कि मुंह भरकर हो। क्यों? उनका दलील ये है कि अगरचे बलगम खुद नजस नहीं है, लेकिन मायदा जो कि नजासत का महल है, वो मुत्तसिल, जाहिर सी बात है ना, जब नजासत आता तो कुछ ना कुछ जो है वो निजासत को लगने दे देता है, कुछ ना कुछ निजासत जो है वो क्या होता है उसके साथ लग जाता है। तो इसी वजह से जो है वो क्या है, ये नाक़िज़ वज़ू है। अब देखो, वहाजा, और ये हुक्म उस वक्त है, मतलब क्या कि जब मुंह भर करके हो, नाक़िज़ वज़ू है। इज़ा क़ा मिर्रतन, जब उसने पित्त की हो, औ तआमन, या खाने की हो, औ माअन, या पानी की हो। फ़इन क़ा बलगमन, बस अगर उसने बलगम का की हो, फ़ग़ैरु नाक़िज़ इंद अबी हनीफ़त मुहम्मदिन, तरफ़ैन की नज़दीक जो है ये नाक़िज़ वज़ू नहीं है। वक़ाल अबू यूसुफ़, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नाक़िज़ुन, ये नाक़िज़ इज़ा क़ाअ बिल अल्फ़म, जब वो मुंह भर कर के करे। वल खिलाफ़ु फिल मुर्तक़ी मिनल जौफ़, वल खिलाफ इख्तिलाफ ही उस फिल मुर्तक़ी, उस बलगम की के में है, मिनल जौफ़, जब ये मायदे से चढ़कर आया हो। फिल मुर्तक़ी मिनल जौफ़, जब ये मायदे से चढ़कर आया हो। अम्मन नाज़िल मिनल रअस, बहरहाल जो कि सर से नीचे उतरने वाला बलगम, फ़ग़ैरु नाक़िज़िन बिल इत्तिफ़ाक़, तो फिर उसके नजदीक जो है वो क्या है इमाम, तो फिर वो जो है गैर नाक़िज़ है, यानी नाक़िज़ वज़ू है न, गैर नाक़िज़ वज़ू है, यानी नाक़िज़ वज़ू नहीं है बिल इत्तिफ़ाक़, इमाम सब फुक़हाए कराम के नजदीक। लिअन्न रअसा लैसा बिमौज़िन निजासत, क्योंकि इमाम
क्योंकि सर जो है वो निजासत का महल नहीं है। ले अबी यूसुफा, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का दलील जो है वो पहले मसले में उनका दलील ये है अन्नहु नजसुन बिल मुजावरती, कि बेशक वो बलगम ये क्या होता है, नजस जो है यानी ये मायदे से चढ़ने वाला बलगम जो है वो क्या है, अन्नहु नजसुन, ये बलगम जो है वो क्या है, नजसुन बिल मुजावरते, वो नजस मायदे से चढ़ने वाला बलगम जो है वो इत्तिसाल की वजह से, अन्नहु नजस, वो नजस हो जाता है बिल मुजावरत, इत्तिसाल की वजह से, यानी नजस के साथ इत्तिसाल होने की वजह से ये खुद भी नजस हो जाते हैं। वलहुमा, और तरफैन फरमाते हैं अन्नहु लज़िजुन, कि ये चिकनी चीज है, ये बलगम जो एक ऐसी चिकनी चीज है, ला ततखल्ललहु नजासतो, ये कि ये इसके अंदर निजासत दाखिल ही नहीं होता, और ला ततखल्ललहु, कि नहीं दाखिल होता उसके अंदर अन्नजासत, निजासत, वमा यत्तसिलु बिही कलीलन, हाँ, और जो हाँ जो थोड़ा बहुत आप कहते हो कि थोड़ा बहुत जो है वो निजासत उसके साथ मिल जाता है, इत्तिसाल हो जाता है, वमा यत्तसिलु बिही कलीलन, और जो बलगम के साथ थोड़ा बहुत निजासत मिल जाता है, मुत्तसिल हो जाता है, वल कलीलु फिल क़ै गैर नाक़िज़न, और वो तो आपको मालूम है कि क़ै में जो है वो कलील चीज जो है वो नाक़िज़ वुज़ू नहीं है। मेरे ख्याल से इतना ही काफी है, टाइम भी पूरा हो गया। बाकी अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले, वरना इसी पर इत्तेफाक करते, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लेती हूँ, और जो नई तालिबा है